teach shapes. Is it ready? So we also, how do we teach it? We can teach it many ways. What is this? This is a circle. Let's draw a circle in the air. Draw it. You all of you, draw a circle in the air. Round and round, round and round. We can sing rhymes with it. I woke up in the morning and my mother said to me, get up, get up, get up and sit up on your knees and stir up your porridge round and round, round and round, round and round. So you can ask them, let's move it slower. Round and round, round and round. Let's make it fast. Round and round, round and round, round and round, round. Let's make it fastest. Round and round, round and round, round and round. So this way you can draw some of the circles on the floor also. You can ask the students to arrange themselves in the circles and you can sing the rhyme. They all can sing the rhyme. Same thing will be implemented in their writing also. First stroke of writing is round and round. So give them crayons and they will make round and round, round and round. And you keep singing the rhyme and they will start singing it in very small amount of time. In 3 or 4 days, some of the students just learn it if we do it 10 times daily, 20 times daily. So there are so many ways to do it. So for every shape we have rhymes, for every word we have rhymes, for every number we have rhymes, for every letter we have rhymes. So you go through all those rhymes, you all have in your resource material. So you can show them the shape and ask them, what is this? This is a triangle. So how many sides it has? 1, 2, 3. How many sides does this have? No sides. It is just one line. So you can show them this ring. What is the shape of this? Circle. So इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल होती हैं. बिस्किट ले आओ, बच्चे को दिखाओ, what is the shape of this? सिंपल इससे काम नहीं चलाना. You can show them a lot many things that are circles. Then you can ask them, look around in your classroom. Is there any shape which is circle? Any one of you can tell me the shapes which you see here and the shape is circle? Look around everyone. Yes, the front of camera is a circle. Anything else? Yes. Yes, it shows the centerpiece is circular in shape. You can search out for more. Regulator. No. So you have to make them active by looking here and there, what is there, so they can grasp the things and relate the things what they are learning. Only books are not sufficient. They must look around, they must see what's happening. So there are so many things we go through. We have some more big one charts. So like this is a big card. So this is 1. How many apples are there? 1. So you can ask the colors as well. What is the color of this one? Green. What is the color of this apple? Red. So आप यहाँ से भी सिखाने. This is 1. Everybody raise one finger. Yes, very good. You all are very good, very sharp and very intelligent. Clap for yourself. Very good. So this is the way, with little prompts you can get their attention. They will look at you. For everything you have to say, very good, you are very nice, बहुत बढ़िया. आपने कभी नहीं कहना कि आपने गलत करा, कहना ही नहीं है ना. This is very nice, but let's correct it. We can make it better. So first, the child must have some connection with you. This is very nice teacher. No, she never gets angry with me. She is very nice. I will stay with my ma'am. है ना. मैम इज गॉड फॉर देम. मैम ने जो कह दिया वही सही है. पेरेंट्स कुछ कह लें वो मानते ही नहीं है, कभी नहीं मानेंगे. मैम ने कह दिया आज बारिश होएगी तो आज बारिश होएगी. मम्मी कहती रही बेटा बारिश नहीं होगी, कितना धूप निकल. नहीं, मेरी मैम ने बोला है बारिश होएगी.
बारिश जरूर होएगी. So that's the dedication they have towards you. So maintain that good feeling and good vibes of them and always say yes, you are very good, you are the best one, है ना. ऐसे करना है, उनको बेस्ट करना है. So I hope you are clear with this. So this way we can go with the circle time. There is one more thing you should add into your circle time. And what is that? We have so many books. I have brought some of them. These are some of the books. Then let me tell you, we choose the book on our own. थीमेटिक बुक्स, अगर आपकी फ्रूट्स की चल रही है तो आप 3-4 बुक्स जो फ्रूट से रिलेटेड है वो कर सकते हो. जैसे ये गेम्स वाली है तो अगर कोई गेम की थीम चल रही है तो हम कर सकते हैं मेरा बैट किधर है. और आप क्या कर सकते हो अगर आपके कोई एक्शन वर्ड्स चल रहे हैं, सो एट दैट टाइम यू कैन चूज़ दिस बुक. अब ये है क्यों भाई क्यों, इफ़ यू वांट टू टेल देम द क्वेश्चन वर्ड्स, है ना, और ये समझ नहीं आ रहा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हो तो आई विल चूज़ दिस बुक टू टेल यू हाउ कैन यू रीड दिस बुक्स टू यू. बहुत अच्छी सुशीला के कॉलम, ये इफ़ यू वांट टू टेल देम अबाउट द इंडियन कल्चर एंड आर्ट एंड द हाउस, so you can use this book. If you want to tell them the emotions, so you can go through this book. So you have to choose what you want to teach them. You are teaching emotions, you are teaching them the family, you are teaching them about the house, you are telling them the sports, or you are telling them hair, body parts. There are so many things that you can, there are so many things you can choose from it. Let me demonstrate you how can you teach the book. I will choose the book क्यों भाई क्यों. और अगर आपको कोई भी बुक में दिक्कत आती है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक आउट, वैसे मुझे लगता है आप कर लेंगे, बट फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम आई एम देयर फॉर यू. वी हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग. चिल्ड्रन लव बिग जेस्चर्स, क्योंकि अभी वो इतने डेवलप नहीं होते कि वो छोटी छोटी चीज़ें कर पाए. हमें हर चीज़ इलेबोरेट करके दिखानी पड़ती है. दैट्स वाई वी मेक जेस्चर्स इन द राइम्स, है ना. जब हम करते हैं हाउस, मेक अ हाउस, है ना. जो हम स्माइल करेंगे, वी वॉन्ट स्माइल लाइक दिस, हम हर चीज़ को इलेबोरेट, बल्कि मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे हाथों से भी एनहांस हो जाए, नो कि उसको और भी बड़ा दिखे. सैड हो रहे हैं तो पूरा सैड होना है, मतलब ये आइज पूरी डाउन होनी चाहिए ना. गुस्सा हो गए तो शो देम इन बिग वे. सो लाइकवाइज दिस इज द बुक. So we can ask questions from it. Okay, I will ask questions from you, then you can have same type of, we can spend a lot of time on this. So what do you see here? What do you see here? आप तो पढ़ नहीं सकते ना, प्रीके के स्टूडेंट हैं आप. think yourself. What do you see here? There is a color, yellow color, in case you know the color, yellow color. This is yellow color. So एक बच्चे को बुला के टच करा सकते हैं. Where is the yellow color? This. Can you see yellow color here? बच्चे को yes, that one, that one. They will rush. वो बैठ के ऐसे नहीं करते. They will rush to that place. ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना. They will go that way. Okay. So which other color do you see here? Black and pink. What is this? Hair. Do all of you have hair? Yes. Touch your hair. Very nice. What is the color of hair? Black. What color do I have? Red. I don't know. This is burgundy, I think. Okay. So different people can have different color of hair. We have to tell such type of things. We have to develop this sense that people do have differences. आप हमेशा सही नहीं होते, हमेशा differences होते हैं, and you should always respect the differences that people have. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमें वो अंदर की सेंस अच्छी डेवलप करनी है. So make them clear that we all have different type of things with us. Okay, what are these? आइज. पर किसी को हो सकता है वो आइज मेक आउट ना कर पाए, किसी को लगे देयर आर वाइट सर्कल्स एंड देयर आर ब्लैक सर्कल्स. डू यू हैव सच टाइप ऑफ थिंग इन योर बॉडी? लुक इनटू द आईज ऑफ एवरीवन. लुक इनटू द आईज ऑफ एवरीवन.
What does she have? What color she has in the eyes? Black and white. So the white color is in the outer of the eye, and the black color is the inner. Do you love to poke into the eyes? No. Children love to, but you should never poke into the eyes of other children. Got it? Very nice. What are these lines? These are eyebrows. Do you have eyebrows? Yes, touch your eyebrows. How many eyebrows do you have? करते हैं, ऐसे ही करते हैं. You are behaving very nicely. Yes, be pre के students. This is called simulated teaching. Simulated होता है एक नकली environment में वो सब करना. Whenever you go to formal trainings, B.Ed or the DECE, so in that you do such type of things. You pretend to be those children, na छोटे वाले. You can do that. You are not supposed to answer according to your knowledge. You have to think like 3 years old. You are doing very nice. Clap for Ravisha ma'am. So touch your eyebrows. How many eyebrows do you have? Two eyebrows. And how many eyes do you have? 2. Very nice. Sometimes when we continue with it and we ask how many nose do you have? Children will say 2 nose. So you ask them to touch the nose, how many they are. Okay. So you have 2 nostrils, the holes of the nose, but we have 1 nose. Touch it. Every time, whatever the children is doing, do that with them, because this will reinforce the concept. उनको लगेगा कि हाँ मैं सही हूँ, देखो मेरी मैडम मेरे को ही देख के ऐसा कर रही हैं, ये रही मेरी आईब्रोज, दीज आर माई आईज, है ना. मेक देम गुड फेसेस, स्माइलिंग फेसेस, दे फील रियली गुड. सो whenever we start, don't think कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे सब समझते हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा लंबा सोचना है, थोड़ा दूर का. जब मैं ये पढ़ूंगी, आई वॉन्ट स्किप लेखक कौन है और चित्रांकन क्या चीज होती है, हु हैव डन इट, बिकॉज दिस थिंग व्हेन क्लास 1 और क्लास 2 चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग दीज बुक्स, सच टाइप ऑफ बुक्स, लास्ट ईयर वी हैड डन दैट. और बच्चों को पता था कि जब वो बुक बना रहे हैं उन्हें इसमें ऑथर भी लिखना है और इलस्ट्रेटर भी लिखना है. दे न्यू इट. मैंने नहीं बताया उनको कि क्या लिखना है, बट दे न्यू इट. व्हेन दे विल मेक अ टाइटल पेज और एंडिंग पेज, दे नो दैट दे हैव टू राइट who is the writer and who is the illustrator. So they fill their names into that. So लेखन, ऋचा, भास्कर. लेखन क्या होता है? जो लिखता है. Soon you will be writing in the class. Okay. चित्रांकन, पिक्चर कौन बना रहा है? तो इस बुक की पिक्चर्स किसने बनाई हैं? मेरे पीछे बोलेंगे शैलजा जैन चौगुले. हाँ, अगर किसी बच्चे की प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, मेक देम क्लियर, आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट इट. फिर से बोलेंगे शैलजा जैन चौगुले. फिर से बोलेंगे शैलजा जैन चौगुले. मुझे अभी भी साउंड आ रही है शैलजा. इट इज नॉट शैलजा, इट इज शैलजा जैन चौगुले. शैलजा जैन चौगुले. यस, यू प्लीज स्पीक. Yes. हाँ. So why we are making this repetition? बोलना सिखाना है. Muscles are not ready. बार बार बोलते हैं बच्चे, हर चीज़ को रिपीट करते हैं. करीबन दिन में एक ही चीज़ को 200 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं. उनको एक वर्ड सिखाओगे, वो बोलते रहेंगे वही दिन रात, तो वो उसको 200 to 300 टाइम्स दिन में रिपीट करते हैं. तो आप क्लास में उसको रिपीट कराते रहें ताकि वो यहाँ इम्प्रिंट हो, फिर दिन भर बोलते रहें. तो मसल्स स्ट्रांग होती है, उनको बोलने की प्रैक्टिस देनी है हमने. ठीक है, चलो नेक्स्ट करें. सो हियर डू वी सी येलो कलर इन दिस पेज? नो, बट द आईज आर सेइंग. कैन यू मेक जेस्चर्स फ्रॉम योर आईज? ब्लिंक योर आईज. Blink your eyes. Open them wide. Very nice. So what type of eyes are these? Are they blinking or they are wide open? Wide open. They are wide open. Again wide open your eyes. Very nice. You all are so good at it.
ओ लेट्स सी क्या है। आंखें लाल हैं, आंखें लाल हैं। क्या इसकी आंखें लाल है? हो गई है रेडनेस आईज में, आंखें लाल है। क्या इसे गुस्सा आया है? हो सकता है इसे गुस्सा आया हो, तभी आंखें लाल होती हैं। आपने देखी है किसी की लाल आंखें? हाँ हाँ देखी है ना, बताओ किसकी देखी है? मेरी देखी है। मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, ऐसे बताना कर देंगे बच्चे ये काम कर देते हैं। हाँ बट मेरी आंखें देखो वाइट है, चेक। अब नहीं है, थोड़ी देर पहले थी। चलो ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से ऑब्जर्व किया करो। क्यों भाई, क्यों आंखें लाल है? क्यों भाई क्यों? स्पीक आफ्टर मी। क्यों भाई क्यों आंखें लाल है? क्यों भाई क्यों? क्यों भाई क्यों? नाक बह रही है। किसकी नाक बहती है? आज किसको जुखाम है? इसको जुखाम है ना? हाँ इनको जुखाम है। हाँ हाँ आप हैंकी लाए हो? मेरी नाक नहीं बहती। ये लाता लेकिन बैग से निकालता नहीं यार। हाँ नहीं, बैग से निकाला करो, जब भी नोज आती है उसे क्लीन किया करो। ओके 2 बार छींका था 2 दिन पहले। हाँ एवरीबडी मस्ट हैव अ हैंकी विद योरसेल्फ। तो नाक बह रही है, देखो इसकी नाक बह रही है। पोंछो, इसे साफ करो। बोलो मेरे पीछे, नाक बह रही है। और भी वेरिएशन हो सकती है। नाक बह रही है, साफ करो इसे, पोंछो। तो ये हो गया अलग एटीट्यूड। लेकिन दूसरा एक मदरली कैसे होगा? नाक बह रही है, पोंछो, इसे साफ करो। So this way with the same sentences you can tell them how to react. This will help them later on in dramatics. Children are very good actors. They are the best. They can imitate each and everything. So tell them the expressions or the emotions they can emulate with these two sentences. There are a lot of variations you can take to the classroom. Okay, गाल गरम हो गए हैं, गाल गरम हो गए हैं, छुओ अपने गाल छुओ। तो this way they will learn body parts. You can include it into body parts. गाल छुओ। क्या आपके गाल गर्म है? गरम है, वेरी गुड। आपके नहीं है? अच्छा, आपके क्यों गरम है? ओके आपको बुखार तो नहीं है? ओके बट देखो बुखार नहीं हो तब भी यू कैन फील हॉट। यहाँ पे गरम गरम लग रहा है, मेरे भी गरम है। टच करो। बच्चे ऐसे आके ना मैम के टच करते हैं फिर। हाँ मैं टच करते हैं बच्चे। ओके गाल गरम हो गए हैं, इन्हें मत छुओ क्यों नहीं छूना? लेट्स फाइंड आउट व्हाई। छूना क्यों नहीं है? नाक बह रही थी तो पहुंच रहे थे, गाल गरम है तो छूना क्यों नहीं है? हाथ जल जाएंगे हो चलो, गला पक सा गया है, पास में पानी भी नहीं है। एनीबडी थर्स्टी? किसी को प्यास लगी है? हाँ तुरंत आपको प्यास लग जाएगी, है ना? चलो वाटर बॉटल से पानी पी लो जिस जिसको लगी है प्यास। हाँ यस फिर वो आंटी को कॉल करेंगे, आंटी बॉटल दे दो, है ना? गला पक सा गया है। कभी किसी का गला पका है? हाँ बच्चों के लिए ना हमेशा यस होती है, उनका हमेशा ही पका होता है। कुछ कह लो, हाँ होता है, मुझे होता है मेरी मम्मी ने भी ऐसा किया था, मेरे पापा ने भी ऐसा किया था। नहीं हाँ हाँ वो हर चीज़ है, बच्चों को कुछ कह लो, वो आप कुछ भी क्वेश्चन दे लो, उनके पास हमेशा था हाँ मेरा पका था, आज भी पका हुआ, कल भी पका हुआ था। सो गला पक सा गया है, पास में पानी भी नहीं है। रिपीट आफ्टर मी, गला पक सा गया है, पास में पानी भी नहीं है। ऑल्दो वी हैव, बच्चे बोलेंगे मैम ये रखा पानी, ये रखा पानी हाँ सो देखो वो कितने एक्टिव है, नोटिस कि किस बच्चे ने कहा है कि पानी रखा है। इससे क्या है, बच्चा कितना सेंसिटिव है, एम्पैथी डेवलप होती है। वो हर चीज़ पे गौर करो कि बच्चे में क्या है। तो जैसे ही बच्चे ने बता दिया ना, उसके आपको ध्यान रखना है, उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में लिखना है कि बच्चा सेंसिटिव है, उसे पता है कि अगर पानी है तो पानी ले क्यों नहीं रहे आप, तो कि बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं उनकी डेली ऑब्जर्वेशंस में। मुंह गोल हो रहा है, बनाओ गोल मुंह। ऐसे बनाओ गोल मुंह,
Make O from with your lips. O. O. मुंह गोल हो रहा है, क्यों भाई क्यों? देखो आंखें लाल हो गई, नाक बह रही है, गला पक गया है, गाल गरम हो गए हैं और मुंह भी गोल गोल बन रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इज द रीजन? सारी हवा निकल गई। क्यों भाई क्यों? व्हाट डू यू सी हियर? balloon. The child was flattening the balloon. वो तो गुब्बारा फुला रहा था। आपने कभी फुलाया है गुब्बारा? वेरी गुड। आज आप सबको गुब्बारे मिलेंगे, आप सब आज गुब्बारे फुलाओगे। तब देखना किसकी आंखें लाल होती हैं, किसकी नाक बहती है, किसके गला दर्द होता है, किसके गाल गरम हो जाते हैं। आर यू एक्साइटेड टू गेट द बलून्स? Yes, ma'am. So students start jumping with joy. Yay! We will get the balloons. So what is? तो फिर हम पिक्चर को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। You can spend enough time. आप इसके ऊपर आधा पौना घंटा बड़े आराम से लगा सकते हो, बातें कर सकते हो कि what is the color of this, what type of expressions they are giving. You please give the same expressions. बनाओ ऐसे मुंह बनाओ, ऐसे expressions बनाओ, है ना? So you can go with such type of things. अब हम क्या करें? धागा लाओ, गुब्बारा बांधो, गुब्बारे को बांधेंगे। तुम गुब्बारा फुलाओ, अब तुम्हारी बारी। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर किड्स। तो गुब्बारा फुलाना उनके लिए बहुत है। अब ये बेचारे सब थक गए हैं, गुब्बारा भी पड़ा है और ये डॉगी भी थक गया है और ये दोनों भी थक गए। बोले मेरे बस की बात नहीं है, अब आप फुलाओ। ठीक है? So this way we can have this, but don't forget who have, tell them what do you see here in on each and every page. मुझे थोड़ा सा आपको बस आइडिया देना था, how can we teach these small books. अभी प्री के में सिर्फ आप वो सुनेंगे, पिक्चर डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे, आपको बताना सीख जाएंगे कलर कौन सा है, कितने बच्चे हैं, कितने डॉगी हैं, डॉगी का कलर क्या है, बैलून का कलर क्या है, आईज है, नोज़ है, वो हर चीज़, हर डिटेलिंग उनको ऑब्जर्व करवानी है। तो दिस विल एनहांस देयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। इट वर्क्स ब्यूटिफुली लेटर ऑन। आई हैव वर्क विद चिल्ड्रन, तो जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं मैंने देखा है इट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। इसका बहुत बहुत ज़्यादा असर होता है। फिर ये देखो दोनों भाई बहन हैं, आप इनके बारे में बात कर सकते हो, किसकी बहन है, किसका भाई है, आप लोग कैसे रहते हो, क्या आप टर्न से खेलते हो या आप लड़ाई करते रहते हो, टॉक अबाउट इट, जिससे आपको बड़ी सारी चीज़ें आप लेटर ऑन डेवलप करेंगे। और फिर बच्चों को बताना बिल्कुल ना भूलें कि ये बुक किस कंपनी की है ना। वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग ना। ये प्रथम बुक्स की बुक्स हैं। सो दिस इज़ देयर सिंपल। उनको बताओ दिस इज़ द लोगो ऑफ द बुक। कोई चीज़ आपने नहीं छोड़नी डिटेलिंग के बिना। जितनी आप डिटेलिंग देंगे बच्चे के माइंड में वो चीज़ें घुसती चली जाती हैं। पीपल मे थिंक दैट दिस इज़ ओवरवेलमिंग, बट बच्चों के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है कि बच्चे हर चीज़ को ऑब्जर्व करें। जस्ट कंसिडर इट कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड वोकैबुलरी विल एनहांस विद दीज टाइप ऑफ बुक्स। ओके, so thanks for your patience. You have participated really well and it was a really nice orientation program. Daily we will have something with you so that you can learn more. Okay, thank you.